کشمیر اس زمین پر جنت کی تصویر، لیکن رہنے والوں کے لیے موت کی زنجیر۔ بھارتی فوج کے ظلم، جلتے گھر، پل پل موت کا خوف، لیکن کچھ ہیں جو اس ظلم کے خلاف ہیں برسر پیکار، دشمن کی بربریت اور ظلم کے خلاف مصروف جہاد۔ یہ ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے سرفروشوں کی داستان۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک بار پھر مشن کشمیر۔ تیسرے پہر چاروں کشمیری مجاہد زمان، سکندر، گلمیر اور اسد بٹ خچروں پر سوار ہو کر چٹان والی ڈھلان سے اتر کر سنسان جنگل میں جنوب مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کشمیری دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ گلمیر اور زمان نے اپنے خچروں پر سوکھی لکڑیوں کا ایک ایک گٹھا بھی لاد رکھا تھا۔ سکندر نے اپنا حلیہ یوں تبدیل کیا ہوا تھا کہ داڑھی مونچھیں بڑھا لی تھی اور سر پر کشمیری دیہاتی ٹوپی جما لی تھی۔ ان سب کے پاس بھرے ہوئے پستول اور کمانڈو چاقو تھے۔ دشوار گزار غیر آباد جنگلی علاقوں سے گزرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں پہنچ گئے۔ گلمیر آگے آگے تھا اور ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ ایک پہاڑی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے جو جنگلی درختوں میں چھپی ہوئی تھی۔ 200-250 فٹ نیچے پکی سڑک تھی۔ جب یہ کشمیری مجاہد پہاڑی کی دوسری طرف پہنچے تو گلمیر نے خچر روک لیا اور ہاتھ کے اشارے سے اترنے کو کہا۔ وہ خچروں سے اتر پڑے۔ اسد بٹ نے خچروں کو ایک درخت کے نیچے باندھ دیا۔ سکندر گلمیر کے پاس آ گیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ چنار کے درختوں کے نیچے جنگلی گھاس سردی میں زرد پڑ رہی تھی۔ گلمیر نے سکندر کو ساتھ لیا اور پہاڑی میدان کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ زمان اور اسد بٹ بھی وہاں آ گئے۔ سکندر نے دیکھا کہ پہاڑی کی ڈھلان میں ایک وادی ہے جو بہت بڑے پیالے کی مانند نظر آ رہی ہے۔ اس وادی میں آہنی گارڈروں والا کینچی نما ایک پل تھا جو اس طرح کی پہاڑی سڑک کو سامنے والی پہاڑی سڑک سے ملا رہا تھا۔ اس کے نیچے دریائے جہلم بہہ رہا تھا۔ پل کوئی 200-250 فٹ لمبا اور 15-20 فٹ کے قریب چوڑا تھا۔ اس وقت پل پر سے انڈین ملٹری کی کچھ گاڑیاں ہلکی رفتار سے گزر رہی تھیں۔ سکندر نے کسی قدر تعجب سے کہا، گل پہلے تو یہاں کوئی پل نہیں تھا۔ گلمیر نے کہا، ہاں تم بہت دیر بعد آئے ہو۔ پہلے یہاں کوئی پل نہیں تھا اور بھارتی فوجی گاڑیاں بانہال کی جانب سے ایک طویل ترین خطرناک پہاڑی راستہ طے کر کے سری نگر کو جاتی تھیں۔ ایک تو وہ راستہ تنگ اور مخدوش تھا جہاں سے بڑی گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھیں، دوسرے ایک پورا دن لگ جاتا تھا۔ ٹینک تو اس طرف سے گزر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہاں اکثر فوجی گاڑیاں کھڈوں میں گرتی رہتی تھیں۔ بھارتی فوج نے 2 مہینے ہوئے یہ نیا پل بنایا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے ایک تو سری نگر کا فاصلہ کم ہو گیا ہے، دوسرے اس پر سے بھارتی فوجی گاڑیاں یہاں تک کہ ٹینک بھی گزر سکتے ہیں۔ زمان نے گلمیر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انڈین ملٹری نے ہماری تحریک آزادی میں جوش و خروش آتے دیکھ کر سری نگر میں فوجی طاقت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ پل ہے۔ اس پل کے ذریعے سری نگر میں مقیم بھارتی فوجی یونٹوں کو اسلحہ، توپیں اور ٹینک بھاری تعداد میں اور تیزی سے پہنچنے لگے ہیں۔ زمان خاموش ہو گیا۔ سکندر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑے غور سے نیچے وادی میں دریائے جہلم کی طوفانی لہروں کے اوپر پھیلے ہوئے بہت بڑے آہنی پل کو دیکھ رہا تھا۔ عین اس وقت سامنے کی طرف سے 4 انڈین ٹینک نمودار ہوئے۔ وہ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ بڑی آسانی سے پل پر سے گزرنے لگے۔ اسد بٹ نے کہا، یہ بھارتی ٹینک ہمارے گھروں پر گولے برسانے اور حریت پسندوں پر مشین گنوں کی بوچھاڑیں کرنے کے لیے سری نگر جا رہے ہیں۔ گلمیر بولا، صرف یہی نہیں، ابھی مزید ٹینک آئیں گے اور سری نگر میں بھارتی غاصب فوجوں کو اسلحہ اور گولہ بارود کی سپلائی ملتی رہے گی اور یہ سارا اسلحہ، سارا گولہ بارود ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے مجاہدوں کے سینے چھلنی کیے جائیں گے اور ہمارے مکانوں کو آگ لگائی جائے گی۔ ہمارے کھیت کھلیان جلا دیے جائیں گے۔ سکندر نے گلمیر کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مت دہراؤ یہ باتیں گلمیر۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے ہمارے کشمیر پر اپنی فوجی طاقت سے زبردستی اور کشمیری مسلمانوں کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے وہاں اذیت بھرا سناٹا چھا گیا۔ زمان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں یہ پل اڑانا ہے سکندر۔ بس ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ تم بھی پل کا مشاہدہ کر لو، اس کا جائزہ لے لو۔ ہمیں ابھی اس پل کی تباہی کی اسکیم بنانی ہوگی اور پھر اس پر فوراً عمل شروع کرنا ہوگا۔ اس پل پر سے جتنی گاڑیاں، جتنے بھارتی ٹینک، جتنے بھارتی فوجی گزریں گے، کشمیر میں اس سے 10 گنا زیادہ مسلمانوں کا خون بہے گا۔ سکندر بڑے غور سے پل کو دیکھ رہا تھا جہاں سے بھارتی ٹینک گزر کر نیچے پکی سڑک پر اتر آئے تھے۔ گلمیر کی آنکھیں بھی پل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، پل کی 12 کینچیاں ہیں، اس حساب سے 24 دیو ہیکل گارڈر ہوں گے۔ اگر ہم 6 کینچیوں کے درمیان ڈائنامائٹ لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پل کو اڑانے اور کافی عرصے تک بیکار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اسد بٹ بولا، بھارتی فوجی دوبارہ پل بنا لیں گے۔ سکندر بولا، ہم اسے دوسری بار بھی اڑا دیں گے، خواہ ہم سب پل کے ساتھ ہی مر جائیں۔ زمان پیچھے نگاہ رکھے ہوئے تھا جہاں کچھ فاصلے پر چنار کے درختوں کے نیچے ان کے خچر چل رہے تھے۔ سکندر بولا، یہاں پینسل بم کام نہیں کریں گے، ہمیں ڈائنامائٹ سٹکس کے گٹھے لگانے ہوں گے۔ کام مشکل ہے مگر ہمیں کرنا ہے، ہر حالت میں اس پل کو اڑانا ہے۔ پھر پل کی دونوں جانب کی
की फौजी चौकियों की तरफ देखते हुए सिकंदर ने गुलमीर से पूछा, यहाँ इंडियन फौज की कितनी नफरी है? गुलमीर बोला, पुल की दोनों तरफ गन पोस्टें हैं जहां तैयारा शिकन तोपें भी लगी हुई हैं। ढलान पर दोनों तरफ टैंक भी हंगामी हालत के लिए कैमोफ्लाज किए गए हैं। फौज की नफरी ज्यादा नहीं है, मगर पुल पर हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त हैं। रात को पुल पर पहरे की गश्त भी होती है। दोनों तरफ से सर्च लाइटों की रोशनी पुल पर चक्कर लगाती रहती है। सिकंदर खामोशी से सुन रहा था, फिर पीछे हट गया। गुलमीर और असद बट भी पीछे होकर घास पर बैठ गए। सिकंदर बोला, उधर अपने खच्चरों के पास आ जाओ, यहाँ बैठना ठीक नहीं। वो खच्चरों के पास जमीन पर बैठ गए। जमान ने थैला खोलकर जवार की रोटी निकालकर उसके टुकड़े सब में तकसीम किए और वो गुड़ के साथ खाने लगे। गुलमीर ने कहा, सिकंदर लाला, कौन नहीं जानता कि तुम डायनामाइट लगाने के माहिर हो, मगर मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा और असद बट भी हमारी मदद करेगा। जमान ने कहा, पुल पर चढ़ना मुश्किल नहीं होगा। सिकंदर कहने लगा, हमें पुल पर चढ़ने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। हम दरिया में तैरते हुए आएंगे और पुल के ऐन नीचे 2 टुकड़ियों में बट जाएंगे। गुलमीर के जहन में भी यही स्कीम थी। जमान ने इस खदशे का इजहार किया कि जहां दरिया की मौजों की रफ्तार बहुत तेज है। इस पर गुलमीर बोला, लेकिन दरिया गहरा है, ये बात हमारे हक में जाती है। अगर दरिया की गहराई कम होती तो हमारे लिए पुल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। सिकंदर उठ खड़ा हुआ और अपने खच्चर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब वापस चलो, बाकी बातें अड्डे पर जाकर होंगी। शाम हो रही है। वो सब अपने अपने खच्चरों पर सवार होकर वापस चल पड़े। वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। सूरज मगरिब की पहाड़ियों में झुकता चला जा रहा था। उन्होंने आधा रास्ता तय किया था और एक गैर हमवार पहाड़ी कत्ते में से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें औरतों की चीखों और वावेला करने की आवाज सुनाई दी। वो वहीं रुक गए। ये आवाजें बाएं जानिब से आ रही थी। चारों कश्मीरी मुजाहिद खच्चरों से उतरकर उस तरफ दौड़े। उन्होंने नीचे देखा तो एक दिलखराश मंजर था। नीचे 6-7 कच्चे मकान थे जिनके बाहर एक भारतीय फौजी जीप खड़ी थी। एक डोगरा फौजी राइफल ताने जीप के पास खड़ा था। 2 फौजी एक मकान के अंदर से एक जवान कश्मीरी लड़की को घसीट कर बाहर ला रहे थे। लड़की तड़प रही थी, चीख रही थी। उसकी बूढ़ी माँ, बाप और दूसरी औरतें रहम की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मगर डोगरा फौजियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो लड़की को घसीट कर जीप की तरफ लाए जहां एक सिपाही पहले से राइफल ताने तैयार खड़ा था और डोगरा जबान में गांव की बूढ़ी औरतों को गालियां दे रहा था। चारों कश्मीरी मुजाहिदों का खून खौल उठा। गुलमीर ने पिस्तौल निकाला। वो फायर करने ही वाला था कि सिकंदर ने उसका पिस्तौल नीचे कर दिया। ठहरो, क्या करने लगे हो? सिकंदर ने पीछे हटकर असद बट से कहा, तुम ऊपर से होकर नीचे आकर पोजीशन संभालो। जमान, तुम इस जगह बैठो। गुलमीर, तुम किसी तरह फौजी जीप के पीछे पहुंचकर पोजीशन ले लो, मैं जाता हूँ। गुलमीर बोला, मगर हम यहाँ से भी इन फौजियों को हलाक कर सकते हैं। सिकंदर ने झुंझला कर दबी जबान में कहा, फासला ज्यादा है, निशाना खता गया तो फौजी हमें घेरे में ले लेंगे। वो फायर करके अपने साथियों को भी बुला सकते हैं। हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं जाता हूँ, तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना। ये कहकर सिकंदर ढलान उतर कर फौजी जीप के पास जाते हुए बड़ी आजिज़ी से बोला, महाराज, ये लोग बेकसूर हैं, ये तो देहाती लोग हैं, इन पर रहम करें। जो डोगरा जीप के पास खड़ा था उसने सिकंदर पर राइफल तान ली। जो 2 फौजी लड़की को पकड़ कर ला रहे थे वहीं रुक गए। एक फौजी ने गरज कर कहा, बकवास बंद करो जांगली, नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे, भाग यहाँ से। यहाँ सिकंदर से एक गलती हो गई। वो एक माहिर कमांडो था, मगर गलती कभी कभी अक्लमंद इंसान भी कर बैठता है। शायद उस वक्त सिकंदर पर जज्बाती गलबा भी था और उसके सीने में भारतीय फौजियों के जुल्म के खिलाफ नफरत के तूफान उठ रहे थे। उसे जेब से पिस्तौल निकालकर किसी एक डोगरे पर फायर कर देना चाहिए था, क्योंकि असद बट, गुलमीर और जमान अपनी अपनी पोजीशनें संभाल चुके थे। मगर सिकंदर ने ऐसा न किया, बल्कि अपने आप को वो दोनों फौजियों के करीब ले आया और कश्मीरी लड़की को छुड़ाने, उसे जालिमों के पंजे से बचाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर डोगरा फौजी ने सिकंदर पर फायर कर दिया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली उसके गर्दन के करीब से होती हुई निकल गई। फायर होता देखकर सिकंदर ने अब पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर देर हो चुकी थी। डोगरा फौजियों ने सिकंदर को नीचे गिरा दिया। एक ने राइफल की नाली उसकी तरफ कर दी। वो फायर करने ही वाला था तो दूसरे फौजी ने चिल्लाकर कहा, इसकी जेब में पिस्तौल है, ये कमांडो है, इसे शूट न करना, इसे साथ ले चलो। दूसरे कमांडो भी इसके साथ होंगे। लड़की जमीन पर एक तरफ सहमी हुई बैठी थी। दूसरी औरतें और लड़की का बाप गम से निढाल पीछे खड़े थे। लड़की के सर पर जीप वाला डोगरा राइफल ताने खड़ा था। दोनों दूसरे डोगरों ने सिकंदर को जमीन पर से उठाया। एक ने राइफल का रुख उसकी तरफ करते हुए गरज कर कहा, जीप में चलो जल्दी। सिकंदर हाथ उठाए जीप की तरफ चला। पहले फौजी ने चिल्लाकर कहा, ये खतरनाक कमांडो है, इसके हाथ बांधो घासीलाल। डोगरा घासीलाल जीप में से रस्सी निकाल रहा था कि उसे असद बट ने जीप के पीछे दरख्त की ओट में से अपने पिस्तौल की जद में ले लिया। दूसरे दोनों डोगरा फौजियों को जमान और गुलमीर ने अपना अपना टारगेट बना लिया। जो ही डोगरे फौजी ने सिकंदर को राइफल का बट मारकर जीप की तरफ धकेला, गुलमीर की पिस्तौल से गोली फायर हुई
और डोगरा सिपाही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही असद बट और जमान ने अपने अपने निशानों से फायर कर दिया। उनके निशाने कभी खता नहीं गए थे। दोनों गोलियां दोनों डोगरा फौजियों की खोपड़ियों को फाड़ती हुई निकल गईं। उनके भेजे उड़ गए और वो कटे हुए दरख्तों की तरह जमीन पर गिर पड़े। असद बट, जमान और गुलमीर अपनी अपनी पोजीशन से निकल कर नीचे आ गए थे। सिकंदर ने कश्मीरी लड़की के सर पर दुपट्टा उड़ाया और कहा, बहन, जब तक तुम्हारे भाई जिंदा हैं, तुम्हारी हुर्मत की तरफ कोई मैली आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। गुलमीर ने गांव की औरतों और लड़की के बाप से कहा, आप लोग भूल जाएं कि यहाँ कभी कोई फौजी डोगरा अपनी जीप लेकर आया था। हम इन काफिरों की लाशों और जीप को ले जाएंगे, इनका नामो निशान भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फौरन तीनों भारतीय डोगरा फौजियों की लाशों को जीप में डाला। जीप को काफी आगे घास में ले गए। फिर वहां जमीन पर से खून और जीप के टायरों के निशान बिल्कुल खत्म किए। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, बेटा, तुम रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, नहीं तो हमारे घर पर कयामत टूट गई थी। गुलमीर ने सीने पर हाथ रखकर कहा, काका, हम कश्मीर को भारतीय फौजी दरिंदों से पाक करके ही दम लेंगे। बूढ़े कश्मीरी के होंठ कपकपाने लगे। उसने पुरजोश नारा लगाया, इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा। और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर ज़ारो कतार रोने लगा। सिकंदर ने उस डोगरे की जेब में से अपनी पिस्तौल और चाकू निकाल लिया जिसने ये चीजें उससे छीनी थी। उनके खच्चर ऊपर दरख्तों में इधर उधर चल रहे थे। सिकंदर ने कहा, हमें ये जीप किसी गहरी खड्ड में फेंक देनी चाहिए, फौजी यही समझेंगे कि उलट गई है। और उन्होंने वैसा ही किया। काफी आगे जाकर जीप को लाशों समेत ऊपर से गहरी खड्ड में लुढ़का दिया। उसके बाद वापस आकर अपने खच्चरों पर सवार हुए और अपने खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। रात हो चुकी थी जब वो अपनी कमीनगाह में पहुंचे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया। जमान ने समावार में से सब्ज कश्मीरी चाय दम कर दी। गार के बाहर दो जवान हस्बे मामूल पहरा दे रहे थे। गार में मोमबत्ती की जगह लालटेन रोशन कर दी गई थी और सब्ज चाय की प्यालियां हाथों में थामे चारों कमांडो अपने नए मिशन पर गुफ्तगू करने लगे। सिकंदर ने गुलमीर से कहा, डायनामाइट की छड़ियों का बंदोबस्त करना होगा, किसी भारतीय डिपो से उड़ा लेंगे। जमान कहने लगा, गनी बट के पास भारतीयों से छीना हुआ काफी असलहा मौजूद है। सब मुजाहिद जरूरत पड़ने पर उससे असलहा लेते हैं। मैं सुबह सुबह उसके पास जाऊंगा। असद बट बोला, हमें कुछ हैंड ग्रेनेड, ब्रेन गन्नों और फालतू राउंड्स की भी जरूरत है। सिकंदर ने चाय का घूंट भरने के बाद प्याली जमीन पर रख दी और बोला, हमें कम से कम 6 डायनामाइट के गट्ठे तो जरूर ही चाहिए। इस तरह पुल की तबाही यकीनी हो जाएगी। गुलमीर ने कहा, मैं और जमान मुंह अंधेरे ही निकल जाएंगे। मतलूबा असलहा जहां कहीं से भी मिला लेकर आएंगे। असद बट ने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, भारतीय हुकूमत ये इल्जाम लगाती है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों की असलहे से मदद कर रहा है। काश ऐसा होता। अगर पाकिस्तान हमें असलहा दे रहा होता तो हमारी ये हालत न होती। अफसोस तो इस बात का है कि पाकिस्तान की इखलाकी मदद तो हमें हासिल है, मगर पाकिस्तान इससे आगे हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। गुलमीर ने कहा, हमारे लिए इखलाकी मदद ही बहुत है, बाकी ये जंग हमें खुद लड़नी है और खुद ही लड़ेंगे। दुश्मन से असलहा छीन कर उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जमान सुबह सबसे पहले गनी के पास जाएंगे, वो कोटली बाग के गांव में ही रहता है ना? जमान ने चाय पीते हुए जवाब दिया, हाँ अभी तक तो वही है। उसके बाद सिकंदर ने गुलमीर और जमान को मजीद कुछ जरूरी चीजें बताईं और ताकीद की कि वो ये सब कुछ लेकर कल दोपहर के बाद तक कमीनगाह पहुंच जाए। हम कल रात पुल की तरफ पेशकदमी करेंगे। गुलमीर, असद बट और जमान के चेहरे भी जज्बा हुब्बुल वतनी से रोशन हो गए थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कल रात अल्लाह की राह में जिहाद करने जा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गुलमीर और जमान असलहा लेने के लिए वहां से रवाना हो चुके थे। उन्होंने सुबह की नमाज भी एक जंगल में पढ़ी। सिकंदर और असद बट ने कमीनगाह में ही सुबह की नमाज अदा की। फिर वो दुश्मन के पुल को उड़ाने की तफसीलात पर बातें करने लगे। सिकंदर वाकई इस काम में बड़ी महारत रखता था। उसने बाज ऐसे नुक्ते की बातें बताई कि असद बट भी उसे दाद दिए बगैर न रह सका। दोपहर के बाद गुलमीर और जमान भी पहुंच गए। उन्होंने एक खच्चर पर बड़ा सा थैला लादा हुआ था जिसके मुंह में से सूखी लकड़ियां बाहर निकली हुई थी, मगर उसके अंदर असलहा भरा हुआ था। वो तमाम मतलूबा असलहा ले आए थे। सिकंदर बड़ा खुश था। उसके पास दस्ती बम, 2 ब्रेन गन्ने, उनके बेशुमार फालतू राउंड्स और डायनामाइट के 10 बम थे। सिकंदर उन्हें गौर से देखने लगा। हर बम 20-20 अदद बारूदी छड़ियों पर मुश्तमिल था। ये छड़ियां एक गट्ठी की शक्ल में बंधी हुई थी। हर बम के दरमियान छोटा सा क्लॉक लगा था। इन बमों पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। सिकंदर ने उसकी मोहरों को पढ़ते हुए कहा, ये पूना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार शुदा हैं। ये देखो, इस पर पूना फैक्ट्री की मोहर लगी है। हर बम के साथ फीता भी लगा था ताकि उसे जहां लगाना हो लगा कर बांध दिया जाए। गुलमीर ने कहा, काफी ताकतवर बम है सिकंदर, क्या ख्याल है तुम्हारा? सिकंदर ने एक बम के गट्ठे को दोबारा हाथ में लेते हुए कहा, बम अपने तौर पर तो तबाही जरूर मचाता है, मगर असल तबाही बम में उस वक्त पैदा होती है जब उसे सही जगह लगाया जाए। हम इन्हें पुल के गार्डरों की कैंचियों में लगाएंगे, जहां फटने के बाद बड़े से बड़े पुल का खड़े रहना एक नामुमकिन बात है। मैं इन बमों से कलकत्ते के होड़ा ब्रिज के पुर्जे उड़ा सकता हूँ। शाम होने तक सिकंदर ने अपनी कमांडो पार्टी को सब कुछ समझा दिया
कि उन्हें कहां से चलकर किस मकाम पर से दरिया में उतरना होगा, कहां तक दरख्तों की शाखों के गट्ठों पर सवार होकर दरिया में सफर करना होगा और कहां से दरिया में उतर जाना होगा। ये सब बड़े तजुर्बाकार तैराक थे और गोता लगाने में एक से एक माहिर था। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम के साए पूरी तरह छा गए तो वो तेज रफ्तार खच्चरों पर बैठकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। खुशकिस्मती से उस रात आसमान पर बादल छा रहे थे, जिनकी वजह से रात ज्यादा अंधेरी हो गई थी। इन सब ने अपनी अपनी कलाई की घड़ियां मिला ली थी। रात के 11 बज रहे थे जब वो पुल से 2 फरलांग पीछे दरियाई जेहलम के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने एक साथी के हाथ खच्चर वापस भिजवा दिए। यहाँ उन्होंने दरख्तों की गिरी पड़ी शाखों और कुछ झाड़ियों को चाकू से काटकर 4 गट्ठे बनाए, उन्हें रस्सियों से बांधा और अल्लाह का नाम लेकर दरिया में उतर गए। उन्होंने स्याह जैकेटें और स्याह पतलूनें पहन रखी थी। चेहरों पर लालटेन की स्याही मली हुई थी, जिसकी वजह से उनके गोरे चेहरे रात की स्याही में जज्ब हो गए थे। असला प्लास्टिक के थैले में बंद था और सिकंदर ने अपने गट्ठे पर लाद रखा था। सबके पास अपनी अपनी ब्रेन गन, साइलेंसर वाले पिस्तौल और 2-2 दस्ती बम थे, मगर सिकंदर की तरफ से उन्हें ये हुक्म था कि अशद जरूरत के वक्त फायर किया जाए। चारों कश्मीरी जानिसार कमांडो दरियाई जेहलम के यख ठंडे पानी में लकड़ी के गट्ठों को बगल में लिए पानी के बहाव के साथ साथ रात की तारीकी में डोगरा फौज के तामीर करदा आहनी पुल की तरफ बढ़ रहे थे। एक खास मकाम पर पहुंचने के बाद सिकंदर ने पीछे हाथ से इशारा किया और दरख्तों की डालियों वाले गट्ठे को छोड़ दिया। वो अब दरिया के बहाव पर आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा था। उसके साथ ही असद बट, जमान और गुलमीर भी गट्ठों से अलग होकर दरिया के पानी में उतर गए। आसमान पर चमकने वाले सितारे गहरे बादलों में छुप गए थे। आगे आगे सिकंदर था, उसके पीछे असद बट, फिर गुलमीर और आखिर में जमान कमांडो था। दूर से उन्हें पुल की रोशनियां नजर आईं। वो तैरते तैरते एक दूसरे के करीब हो गए। सिकंदर ने बाजू पानी में हिलाते हुए कहा, याद रखना, पानी के दरमियान सुतून पर से हम अलग हो जाएंगे। असद बट, गुलमीर और जमान ने एक हाथ ऊपर उठाकर असबाती इशारा किया और सिकंदर तैरने लगा। उस वक्त 2-2 बम जमान, असद बट और गुलमीर के पास थे, जबकि 4 बम सिकंदर ने अपने पेट के साथ बांधे हुए थे। पुल करीब आ रहा था, उसकी बड़ी बड़ी रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। वो पुल के दरमियान कंक्रीट के बने हुए गोल सुतून की तरफ बढ़ रहे थे। दरमियान में ऐसे 12 सुतून बनाए गए थे जिन पर पुल का मजबूत फौलादी ढांचा खड़ा था। पुल पर खड़े गार्ड्स उन्हें नजर आ रहे थे। चारों कश्मीरी कमांडोज के सिर्फ सर पानी से बाहर थे। जब पुल का दरमियानी सुतून 100 गज के फासले पर रह गया तो उन्होंने दरिया में डुबकी लगा दी। पानी के अंदर ही अंदर वो एक दूसरे का हाथ थामे पुल की तरफ बढ़ने लगे। पुल के दरमियान सुतून के पास आते ही गुलमीर, असद बट और जमान दूसरे सुतूनों की तरफ मुड़ गए थे। सिकंदर दरमियानी सुतून के पास ही रहा। फिर उसने आहिस्ता से सर पानी में से निकाल कर देखा। पुल उसके ऊपर था। ऊपर गार्ड ड्यूटी देने वाले डोगरा फौजियों की आपस में बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर किसी फौजी ने जलता हुआ सिगरेट दरिया में फेंका। सिगरेट अंगारे की तरह सिकंदर के सामने से होता हुआ पानी में गिरकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सिकंदर ने कंक्रीट के सुतूनों के बाहर निकलते हुए एक पत्थर को पकड़ रखा था। जहां दरिया की मौजों का बहाव बड़ा तेज था, मगर सिकंदर भी कोई अनाड़ी नहीं था। वो एक तरबियत याफ्ता तजुर्बाकार कमांडो था। उसने हिकमत अमली बड़ी दानिशमंदी से तैयार की थी। उन्होंने एक एक बम उन सुतूनों पर दरिया की सतह के बाहर भी लगाना था। ये दुश्मन को धोखा देने के लिए था। असल टाइम बम उन्होंने पुल के गार्डों की कैंचियों में लगाए थे। सुतून के ऊपर खड़े होने के लिए काफी जगह थी। वहां अंधेरा था। सर्च लाइटों की गोल रोशनी थोड़ी थोड़ी देर बाद दरिया के शुमाल की जानिब गर्दिश करती पानी की सतह के ऊपर से गुजर जाती। हकीकत ये थी कि भारतीय फौज को इस पुल की तरफ से इत्मीनान था, क्योंकि यहाँ इस कदर हिफाजती इंतजामात थे और पुल ऐसी दुश्वार गुजार और नाकाबिले गुजर जगह पर था कि यहाँ किसी हुर्रियत पसंद का आना भारतीय फौजी हुक्काम के नजदीक नामुमकिन था। वो नहीं जानते थे कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद अपनी वतन की आजादी और दीन की नामूस की खातिर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रहे हैं। इस पुल को तामीर हुए 6-7 माह गुजर गए थे और यहाँ कभी कोई छोटी मोटी कमांडो कार्रवाई भी नहीं हुई थी। सिकंदर सुतून के ऊपर चढ़ गया। उसने एक टाइम बम सुतून की दीवार के साथ बाहर की समत लगा दिया, जो साफ नजर आ रहा था। ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए और भारतीय फौजी पुल की जांच पड़ताल करें तो वो सुतून के बम पर ही इक्तिफा करके मुतमईन हो जाएं और यूं ऊपर गार्ड की कैंची में लगा हुआ बम उनकी तवज्जो का मरकज न बने। पुल पर से 2 फौजी ट्रक गुजरे तो सिकंदर पुल की फौलादी कैंचियों पर ऊपर चढ़ने लगा। उसे ऊपर तक चढ़ने में किसी खास दुश्वारी का सामना न हुआ। पुल के गार्डरों पर इतने मोटे मोटे नट बोल्ट लगे थे कि वो उन पर पांव टिकाता तेजी से ऊपर कैंची तक पहुंच गया। अब वो पुल की छत के नीचे था। उसने जल्दी जल्दी 2 जगहों पर इंतहाई ताकतवर टाइम बम लगा दिए। ये बम गार्डरों के अंदर इस तरह लगाए गए थे कि सर्च लाइट की रोशनी में भी नजर नहीं आ सकते थे। अभी उसके पास 2 टाइम बम बाकी थे।
वो गार्डरों पर पांव रखता नीचे उतर आया। उसने आहिस्ता से दरिया में गौता लगाया और पानी के अंदर ही अंदर तेज रफ्तार मौजों का मुकाबला करता दूसरे सुतून पर आ गया। उसने पानी में से सर बाहर निकाला तो सर्च लाइट की गोल रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही थी। सिकंदर ने जल्दी से सर पानी के अंदर कर लिया। रोशनी आगे गुजर गई तो उसने सर बाहर निकाल कर देखा। पुल के ऊपर उस हिस्से पर कोई डोगरा फौजी मौजूद नहीं था। वो सुतून पर चढ़ गया। एक बम उसने सुतून के साथ बाहर की तरफ चिपका दिया और दूसरा बम सीने के साथ लटकाए गार्डरों पर चढ़ने लगा। जिस मकाम पर पुल के ऐन नीचे 4 गार्डर कैंची की शक्ल में एक दूसरे से आकर मिल गए थे, सिकंदर ने अपने हिस्से का आखिरी बम वहां चिपका दिया। फिर वो बड़ी एहतियात से कदम रखता नीचे सुतून पर उतर आया। वो बैठ गया। पुल के ऊपर रोशनियां थी मगर पुल के नीचे अंधेरा था। उसने गौर से पुल के दूसरे सुतूनों की तरफ देखा। वो अपने साथी कमांडोज को देखने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है या नहीं। उसकी बाएं जानिब असद बट और गुलमीर अंधेरे में पुल के नीचे अपना काम कर रहे थे। दाएं तरफ जमान ने भी बम लगा दिए थे। गुलमीर बड़ी होशियारी से पुल की कैंची में 2 बम लगा चुका था। एक बम उसने सुतून के साथ भी चिपका दिया। तमाम बमों के बटन दबाकर उनके अंदर लगे छोटे से क्लॉक चला दिए गए थे। इन बमों को ठीक आधे घंटे बाद भयानक धमाकों के साथ फटना और पुल को उड़ा देना था। गुलमीर सुतून पर उतरा ही था कि उसके कांधे से लटकी हुई ब्रेन गन पानी में गिर गई। उसकी आवाज पैदा हुई तो ऊपर से डोगरा गार्ड ने चिल्लाकर कहा, कौन है? दूसरे गार्ड भी होशियार हो गए। उन्होंने नीचे टॉर्च की रोशनी फेंकी तो एक इंसानी साए को भागकर सुतून की तरफ जाते हुए देखा। उसी वक्त खतरे का विसल बजा और डोगरे फौजियों ने सुतून को निशाना बनाकर फायर खोल दिया। असद बट, जमान और सिकंदर ने फायरिंग की आवाज सुनी तो पहले तो परेशान हुए, फिर अपने तौर पर छुपने की कोशिश करने लगे। अचानक 10-12 सर्च लाइटों की रोशनी हुई और पुल के ऊपर नीचे चारों तरफ रोशनी फैल गई। 2 मोटर बोट्स खतरे का सायरन बजाती किनारे की तरफ से पुल की तरफ बढ़ी। असद बट ने सुतून पर से दरिया में छलांग लगा दी। ऊपर से उस पर गोलियों की बौछार पड़ रही थी मगर वो पानी की तह में नीचे जा चुका था। किसी फौजी ने चीख कर कहा, कश्मीरी कमांडो हैं, जाने ना पाएं। जमान ने अपना काम कर लिया था। उसने ब्रेन गन का एक ब्रस्ट फायर किया और सुतून पर से दरिया में छलांग लगा दी। अभी वो दरिया के ऊपर ही था कि मशीन गन का ब्रस्ट उसके जिस्म को छलनी कर गया। वो खून में लथपथ दरिया में गिरा। दरिया उस कश्मीरी हुर्रियत पसंद के खून से सुर्ख होने लगा। जमान की आंखों के आगे रोशनियां सी उतरने लगी थी। वो अपने अंदर बेहद सुकून महसूस कर रहा था, जैसे वो किसी की मोहब्बत भरी आगोश में उतर आया हो। वो पानी के अंदर ही अंदर जा रहा था। उसने ऐसा सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके होंठों पर अपने अल्लाह रसूल का नाम आ गया। उसने दिल में कलमा पाक पढ़ा और फिर उसे कुछ होश न रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।